सो बच्चे वी हैव सीन द गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। एक साइड से रिसीव कर रहा है गोल्जी ऑपरेटर्स और दूसरी तरफ से शिपिंग कर रहा है। शिपिंग मतलब उसको पैक करके आगे भेजना, ठीक है। देन वी आर कमिंग टू सीलिया एंड फ्लैगेला। फ्लैगेला देखो, सीलिया एंड फ्लैगेला। सीलिया देखो, ध्यान से देखो, इसकी सेल मेम्ब्रेन पे दिस इज पैरामीशियम। पैरामीशियम की सेल मेम्ब्रेन देखो, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सीलिया, ठीक है। दीज आर द स्मॉल एक्सटेंशंस ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड दे हेल्प इन मूवमेंट। जो लोकोमोशन वर्ड हमारी बुक में दिया हुआ है, दैट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू another, and it also helps in the collection of food. Okay, these are found in unicellular organisms like paramecium. This is paramecium, and in Euglena we find flagellum या flagella. Okay, so ये flagella जो होते हैं, these are long hair like structures and they are less in number. Cilia are numerous, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, but these flagella are less in number. Okay, then Euglena is one of the unicellular organism having the flagella. Okay, so main function जो है इनका क्या है? Main function is to help in locomotion and collection of food. You can also write that they help in the movement of these cells from one place to another, and they also collect the food. Next we are coming to vacuole. See this blue part in the plant cell. This blue part is a होलो स्ट्रक्चर, ये खाली होता है अंदर से, एम्प्टी स्पेस जिसको हम बोलते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ओनली. All the organelles are present in cytoplasm actually. So in plant cells, see this is the green cell, plant cell na. So it is, they are large in plant cells. Why they are large in plant cell? Because they store excess of water and waste products. See plants do photosynthesis with the water, they need water na, they store a lot of water in them. For this they are having vacuole in large size. Then after doing photosynthesis, the excess of water also gets stored in the vacuoles. Okay, then the waste products are also stored in vacuoles. But if we talk about animal cell, animal cell में जो vacuoles होते हैं, see the vacuoles, see the vacuoles are these vacuoles, these are very small in size as compared to plant cell, है ना. So ये these are vacuoles, ये small होते हैं because उनको उतना पानी नहीं स्टोर करना होता है जितना प्लांट्स को स्टोर करना होता है. सो बच्चे यू हैव टू डू these diagrams also very clearly, and you have to see the difference also. Now we are doing that difference. This is the activity which we have done previously in our previous periods. ठीक है, so in our previous classes. So okay, see we are going to observe animal cell and plant cell under the microscope. In animals we are going to see cheek cells and blood cells. In plants we are going to see the onion cell. So see what is there, these are the cheek cells, and in cheek cells you can see the cytoplasm, the nucleus and the cell membrane. ओके, एंड देर इज़ नो सेल वॉल. ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी हम आगे देखेंगे उसमें यू विल बी एबल टू सी द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स. सो दीज आर इरेगुलर इन शेप. ओके, एंड अभी इस माइक्रोस्कोप में आपको इतना ही दिखाई देगा, ऑल ऑर्गेनेलीज नहीं दिखाई देंगी. ठीक है, जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको बीच में डॉट्स टाइप में दिख रहे हैं, दीज आर द चीक्स, दीज आर द ऑर्गेनेलीज इन द सेल. सो बच्चे इसमें जो हमने
इसको किया क्या था, हमने टूथपिक से अपनी अंदर चीक के इनर साइड पे जेंटली रब किया था। देन जो थोड़ा फ्रोथी मटेरियल हमें मिला, हमने उसको ग्लास साइड स्लाइड पे रखा था एंड वी एडेड मेथाइलिन ब्लू कलर in that slide, in that frothy material. वाई मेथालिन ब्लू, ताकि उसको वो स्टेन हम उसको कर दें। स्टेन मीन्स उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो हमें थोड़ा डार्क दिखाई दें। अगर ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा ना। देन उसके ऊपर हम एक कवर स्लिप रखते हैं, दोबारा से ट्रांसपेरेंट, और माइक्रोस्कोप में अंदर देखते हैं। देन वी ऑब्जर्व दैट these cheek cells in many shape like in polygonal and they are in clusters, इकट्ठे मिलते हैं हमें ये, ठीक है। और न्यूक्लियस हम इनका बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और बीच का जितना भी मटेरियल है दैट इज साइटोप्लाज्म, और उसकी आउटर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। देन वी आर हैविंग अनियन सेल। देखो अनियन सेल में अब देखो आपको बाहर की जो आउटर दिखाई दे रही है आपको, एक सेकेंड, बाहर आपको ये आउटर यस नाउ, ये जो आपको आउटर मेम्ब्रेन के बाहर भी एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट सेल को, जैसे एक रिजिड शेप उसको मिलती है और सपोर्ट उसको मिलता है, और साथ में इट प्रोवाइड्स शील्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेजेस, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो अलग, कभी गर्मी कभी सर्दी होते हैं, उससे जो प्रोटेक्शन मिलती है दैट इज़ थ्रू सेल वॉल, ठीक है। ये जो आपको एंड दिस इज इन सी इन हेक्सागोनल शेप, सो दिस इज द सेल वॉल। ये इस चीज़ का डिफरेंट है। न्यूक्लियस आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी दिखाई दे रही है, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म इन बिटवीन। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड है दिस इज साइटोप्लाज्म, ओके। एंड अनियन पील का स्ट्रक्चर ऐसे ही ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और आपकी बुक में भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ओके। देन these again take the screenshot of these questions and do these in your notebook also, okay, take the screenshot. Then we are coming to the comparison of plant and animal cell. See the difference, ये डायग्राम आपकी बुक में बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली दिया हुआ है। और देखिए जो ये ब्लैक में दे रखे हैं ये सारे कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन पार्ट्स हैं, कॉमन ऑर्गेनीज है। सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस दोनों में है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पार्ट होता है वो दोनों में है, स्मूथ ईआर दोनों में है, रफ ईआर दोनों में है, देन राइबोसोम्स भी दोनों में है, वैक्यूल भी दोनों में है, लेकिन एनिमल सेल में छोटा है और प्लांट सेल में बड़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में है एंड गोल्जी अपरेटस भी दोनों में है। जो नहीं है वो ध्यान से देखिए, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है और इसमें नहीं है एनिमल सेल में। सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। देन ये आपकी सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये पार्ट्स होता है किसका, सेल वॉल का, ओके बच्चे। देन सेंट्रियोल्स ये जो होते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ एनिमल सेल बट नॉट द प्लांट सेल। लाइजोसोम्स आर ऑल्सो देयर इन द प्लांट एनिमल सेल, ठीक है। सेंट्रोसोम्स आर ऑल्सो देयर इन द एनिमल सेल ओनली। सो ये आप अच्छे से नोट डाउन भी करें, इसका डिफरेंस भी लर्न करें और इसका functions भी, and diagram especially you have to learn the diagram. This is the compare and contrast कि दोनों में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, इसके इंटरसेक्शन में। और प्लांट सेल में क्या नहीं है, सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है। लार्ज वैक्यूल प्लांट में है, इसमें स्मॉल वैक्यूल या कोई वैक्यूल नहीं।
क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है और इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं। एंड देन जो इसमें जो फ्लैजेला होता है वो गैमेट्स में ही हमें मिलता है, बट एनिमल सेल में हमें फ्लैजेला मिलता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ अगेन यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चन, बिकॉज ये पहले हमने थोड़ा थोड़ा किया था ना, अब थोड़ा सा आपको फास्टली करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज रिवीजन। ठीक है, रिमेंबर दैट दिस इज रिवीजन, सो यू हैव टू मूव फास्टली विद अस. Okay, so that we would be able to revise all the 3 chapters in this time only. Okay, then this is the diagram and this is the worksheet. You have to name them, draw these and name all these parts. Okay, you can take the screenshot also, you can take out printout also, whatever you like you can do it. Then take the screenshot of these. Now the levels of organization, this is the last topic of this chapter. See, firstly देखो ऑर्गेनाइजेशन, ये हम अपनी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये हम फुल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो अभी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब हमारी पूरी बायोस्फीयर तक बनने में जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं. देखिए सबसे पहले एटम बना, एटम से क्या बना, molecule. Then we get the cell. Cell, cluster of cells will become the tissues. Then tissues, cluster of tissues will make an organ. Then all the organs will form an organ system. See, ठीक है, ये सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से लीफ बनी, साइलम फाइलम है ना, ये टिश्यूज़ होती हैं, उसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़. देन ऑर्गन बना, लीफ बनी, लीफ से पूरा ब्रांच सिस्टम बना, उसके अंदर ब्रांच, स्टेम, छोटे स्टेम, और देन उसके सारे पार्ट्स, पेटियोल्स वगैरह सब हैं. ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दिस ट्री इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ना. देन ऑर्गेनिज्म से लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल मेक पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बाद एक कम्युनिटी बनेगी. एक कम्युनिटी के बाद अर्थ के ऊपर जो पूरा सिस्टम, जैसे एक इकोसिस्टम, हम एक फॉरेस्ट की बात करते हैं, पार्क हो गया एक इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट हो गया एक इकोसिस्टम, जगह जगह पे जो कम्युनिटीज़ अलग अलग बन जाती हैं उनको इकोसिस्टम बोलते हैं. देन बहुत सारे इकोसिस्टम इकट्ठे मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर. ठीक है, ये हम प्लांट्स के उसमें हमने बात की. अब बात करते हैं एनिमल्स में. सी एनिमल्स में देखो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है एनिमल्स का, दैट इज सेल. देन द सेल्स विल make a cluster and they will join to form tissue. Then after tissue, these are the tissues and tissues will combine to form an organ. Now you can see the organ, this heart is an organ, lungs, these are organ. देन जैसे हार्ट एक ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, एंड जो लंग्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. सो ये बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इकट्ठे मिलते हैं, दे फॉर्म, सो द ग्रुप ऑफ द ऑर्गन्स मेक द ऑर्गन सिस्टम. फिर बच्चे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, then skeletal system, the nervous system, reproductive system, then we are having endocrine system, in integumentary system. These all system will make an organism. So organisms, जब number of organisms बढ़ेंगे तो हम उनको क्या बोलते हैं, population. ठीक है, पॉपुलेशन से फिर बनती है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे रहने लगते हैं, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी बनती है. देन एक कम्युनिटी से बनता है एक इको सिस्टम. ठीक है, सो दिस वाज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एटम से बना मॉलिक्यूल, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसके अंदर उसके भी पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. फिर उससे बनता है मॉलिक्यूल, 1, 2 या 3 जो एटम्स मिलकर बनते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल. देन सेल बना, सेल से टिश्यू बनी. ठीक है, आप देख सकते हो प्लांट सेल, उसके बाद फोटोसिंथेटिक टिश्यू दिखाई, उसके बाद लीफ दिखाया, और ये
हमारे अंदर हो रहा है, दैट दिस इज न्यूरॉन, न्यूरॉन से न्यूरॉन नर्वस टिश्यू बना पूरा हमारे ब्रेन के अंदर, फिर उससे ब्रेन बना, दिस इज एन ऑर्गन। ओके, देन पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा जिसका एक पार्ट है ब्रेन, और भी जैसे पार्ट्स ज्वाइन होंगे ब्रेन के साथ तो वो नर्वस सिस्टम बनाएंगे। यू रिमेंबर ना नर्वस सिस्टम कौन कौन से पार्ट्स ज्वाइन होते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। वन इज okay, write them and show it to me. Okay, then leaf, then shoot system, and shoot system से बना पूरा tree. Okay, so this is how the level of organizations are there. Then exercise हम कर चुके हैं, written test देंगे. These are the critical thinking questions, you have to think over them and also solve these questions also. Okay, so now after this lesson you all are able to describe the cell and the its importance for life. You can now easily differentiate between plant and animals, and now you can illustrate the structure of cell also, and also you can tell the functions of the organelles, and you have also learned the level of organization. So this is the worksheet I have given you previously also, and this is the assignment, so you can see. If any one of you is not having this assignment, take the screenshot and you can solve it in your notebook too. Okay, take the screenshot. So I'm moving further. This was the chapter, and now your first chapter is revised. I hope that you remember it very well and learn all the exercise questions and the internal questions. Especially read the full chapter very carefully. Okay, we are revising it third time. I think that each and every word of the chapter is very 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 clear to you. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है then do ask to me, so that everything should be very clear. Okay बच्चे, so take care.